were rupees 1250, and the same on 31st March 2022 were rupees 1000. Hmm. Paid in Subscriptions. advance. This is nothing but paid in advance. There in the club you will have several members, yes or no? Suppose say for example you have 10 members. 7 members, 7 members, you can assume 7 members will pay the subscription on time. Okay? 2 members they will pay early, 1 member he will not pay early. I mean, even after reminder also he will not pay. Yes or no? Yes, sir. That is receivable. The person who is not paying, you call him as receivable. Yes or no? The person who pays early, you call him as received in advance. Yes or no? This is accrual concept. In expenses, you have this outstanding expenses. Yes or no? Outstanding expenses. This is expense of the current year. Expense of the current year. This is previous year. This is next year. Take three years. Okay? I am talking about current year. In current year, something is outstanding. It signifies that you have utilized the benefit. That benefit is relating to current year. Example, rent. I have taken this building on rent. Yes or no? Building rent is 12,000 per year. I paid only 10,000. Yes or no? 2,000 is outstanding. This is closing outstanding. Yes? 2,000 is outstanding. This is closing outstanding. Yes? This 2,000 I'll pay in the next year. Yes? So in the next year, suppose I paid 10,000. In this 10,000, prima facie this 2,000 is included. Yes or no? Yes or no? Ha. So out of this 10,000, 8,000 is only the expense of the next year. 2,000 is relating to previous year. P&L अकाउंट में 8,000 ही जाएगा क्योंकि ये 2,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. समझ गया? सिमिलरली रेंट 10,000 है, मैंने 12,000 पेमेंट कर दिया. 2,000 क्या होगा? प्रीपेड होगा. 2,000 is relating to next year, but I paid in this year. Prepaid. So P&L में 10,000 ही जाएगा, 2,000 नहीं जाएगा. तो 12,000 से 2,000 reduce करना है. Closing prepaid, reduce. Understanding? Closing outstanding add करो. Understanding? Example, मैंने रेंट 10,000 है, मैंने 8,000 पे किया. करंट ईयर रेंट 10,000 है, मैंने 8,000 पे किया. सो 2,000 इज आउटस्टैंडिंग. यस और नो? 2,000 इज आउटस्टैंडिंग. पेड इज 8,000. P&L में 10,000 जाएगा. एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. प्रीपेड होने से लेस क्लोजिंग प्रीपेड. अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट ईयर 10,000 पे कर रहा हूं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करना है क्योंकि ये 10,000 में पहले प्राइमा फेसी this 2,000 is included, but this 2,000 is not relating to current year, this is relating to last year. So prima facie you have to reduce this 2,000 from 10,000. Yes or no? This is opening outstanding. Reduce. No problem. Opening outstanding you have to reduce. ठीक है? Outstanding prepaid. Understood? Understood? हाँ. Yeah, next Rakesh Sharma, go on. Subscriptions for 2021 and 22 unpaid on 31st March 2022 were rupees 2250. हाँ. So a statement showing the amount of subscriptions that would appear in income and expenditure account of the club for the year ended 31st March 2022. They are asking you to
find out the amount of subscription that would appear in the income and expenditure account. So income and expenditure में accrual जो होता है वही लेना है, ठीक है. जितना पेमेंट किया दैट इज इरिलेवेंट, जितना रिसीव हुआ दैट इज इरिलेवेंट. यस और नो. Expense that is incurred you have to take it to the income and expenditure account. Income that is earned that you have to take it to the income and expenditure account. Understood? Question number 14, page number 211. Those who have joined now. Question number 14 है. करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2021-22. दिस इज द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है. प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या होगा बोलो? सर 2021. हाँ, वेरी गुड, 2021. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा बोलो? या फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट बोल सकते हैं, क्या होगा? 22-23. यस, 22-23. सी केयरफुली. नाउ फाइनेंशियल ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, अमाउंट बोलो मुझे. सर 50,000. 50,000. Yes or no? Next, subscription for 2021-22 unpaid on 1st of April 2021. See here, 1st of April 2021. एंड कब होगा? 31st March 2022. है कि नहीं? सब्सक्रिप्शन अनपेड ऑन 1st of April, मतलब दिस इज ओपनिंग रिसीवेबल. यस और नो? दिस इज ओपनिंग रिसीवेबल. इनकम ऑफ विच ईयर? लास्ट ईयर. Yes or no? So indirectly in this 50,000 you should assume that you have this 5,000 rupees. Understanding? This 5,000 is relating to income of whom? Which year? Last year. Because it is receivable, opening receivable. Following me? This is what? Opening receivable. Opening receivable is income of the previous year. During the year you have received 50,000. Indirectly you have to assume that this 5,000 is received during the current year. Yes or no? So this is relating to last year, so you have to reduce 5,000. Following me? Following me? Any doubt till now? Next, subscriptions paid in advance on 31st March 2021. Yes. See here, 31st March 2021 में एडवांस है. एडवांस इज नथिंग बट रिसीव्ड इन एडवांस. Yes or no? This is received in advance. This is not relating to financial year 2021, but receive किया है. ये कब का हो सकता है? For period relating to financial year after 2021. Yes or no? तभी तो एडवांस बोल सकते हैं ना. तो indirectly this is relating to next year financial income. So you have to add this part. Understanding? कितना है? 1,250. Understood? Next, and the same on 31st March 2022. 31st March 2020 में रिसीवेबल बोल रहा है, रिसीवेबल बोल रहा है, सॉरी एडवांस.
एडवांस में रिसीव हो गया बोल रहा है. सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस है कि नहीं, पेड फ्रॉम द एंगल ऑफ मेंबर्स, रिसीव्ड फ्रॉम द एंगल ऑफ क्लब. क्लब रिसीव करेगा, मेंबर्स पे करेगा, ऐसा नो. तो सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2022, तो मतलब है करंट फाइनेंशियल ईयर का नहीं है ये, है कि नहीं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का होगा. तो इसको भी रिड्यूस करो. कितना है? 1000. 1000. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शंस फॉर 21-22 unpaid on 31st March 2022. This is nothing but closing receivable, है कि नहीं? Closing receivable, yes or no? Subscriptions for 2021-22 only, but receive नहीं हुआ है, yes or no? मतलब ये 50,000 में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अभी तक रिसीव नहीं हुआ, 31 मार्च तक रिसीव नहीं हुआ, लेकिन ये करंट ईयर का इनकम ही है, यस और नो, बिकॉज दिस इज क्लोजिंग रिसीवेबल. सो दिस को ऐड करना पड़ेगा. कितना है? 2250. नेट कितना है देखो. दिस सम wholly is based on accrual concept. 47,500. अंडरस्टूड? आपको अंडरस्टूड? एनी डाउट है? अंडरस्टूड ना? सो इसलिए एक बार अज्यूम करना है प्रीवियस ईयर क्या है, फ्यूचर ईयर क्या है, करंट ईयर इनकम कितना होगा, ओपनिंग रिसीवेबल क्या था, क्लोजिंग रिसीवेबल क्या है, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा, ऐड करना है, माइनस करना है. ये लॉजिक समझ गए? अंडरस्टूड ना? हाँ, ऐसा एज्यूम करेगा तब प्रीवियस ईयर का इनकम है, करंट ईयर का इनकम है पता चलेगा, या फ्यूचर ईयर का इनकम है पता चलेगा. सेम क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं. दिस इज amount that will go to income and expenditure account, yes or no? क्वेश्चन में ये अमाउंट दे दिया है, आपको बोल रहे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कितना दिखेगा, ये फाइंड आउट करना है. अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं? आपको इस सम में कितना रिसीव हुआ था बोला है. दिस इज नथिंग बट रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिसीट पार्ट देखेगा, रिसीट साइड अगर देखेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज सिमिलर टू कैश अकाउंट. तो कैश डेबिट, कैश क्रेडिट. कैश डेबिट कब होगा? कैश जब आएगा, क्लब में जब आएगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जब आएगा डेबिट होगा, है कि नहीं? तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है. अंडरस्टूड? इस क्वेश्चन में ये दे दिया, आपको ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है. और ऑपोजिट में भी दे सकता है. ये अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिख रहा है, एग्जैक्टली कितना अमाउंट कैश में आया था फाइंड आउट करो. ये सब आइटम्स देगा, सेम सेम ऐसा ही देगा. कैसे? सब्सक्रिप्शन अनपेड ऑन 1/4/2021, ये अमाउंट 5000, ठीक है. सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 1250 and the same on closing is 1000. Subscription unpaid as on 31st March 2022 2250. ये अमाउंट दे दिया और ये चार अमाउंट दे दिया. 50,000 फाइंड आउट करना है. कैसे? रिवर्स होगा, देख लो. 47,500 इधर प्लस हुआ है ना, इधर फर्स्ट आइटम से ले लेंगे, इधर माइनस हुआ है तो इधर प्लस होगा, प्लस 5,000. समझ गया? इधर माइनस होगा, $47,500 प्लस 5,000 माइनस 1250 प्लस 1,000
माइनस 2250. फाइंड आउट करो कितना आ रहा है, देखो 50,000 आ रहा है ना. कॉन्सेप्ट समझ गया? Any doubts from online students? Any doubts? No, sir. Who is this new person? Shibani Borua. Yes, sir. Clear with the concept? Any doubt? Yes. No. Okay, very good. Understood? Amount received has been given and the items has been given. You are asked to find out the amount that goes to income and expenditure account. Similarly, they may give you the amount which is appearing in the income and expenditure account. They'll ask you to find out exact subscription amount received as per receipts and payments account. Opposite way. You have to think, you have to give the treatment opposite way. Understanding? Question number 16. Page number 214. Shibani, can you read the sum? Yes, sir. Ah. The income and expenditure account of an association for the year ended 31st March 2022 is as under. Income and expenditure account you are going to prepare only for non-profit organization. Yes or no? Yes, yes. Next. Particulars: to salary 1,20,000, Okay. to printing and stationery 6,000, to telephone 1,500, to postage 500, to general expenses 12,000, to interest and bank charges 5,500, Okay. to audit fees 2,500, to annual dinner expenses 25,000, to depreciation 7,000, to surplus 30,000, total 2,10,000. One second. Credit side, This is the debit part. yeah. Indirectly, this is the expenditure part. Understanding? Yes. Although the account is named as income and expenditure, debit side will not be income. Because as per accounting principle, debit all expenses and losses. Understanding? Yes. Debit side हमेशा expenses ही होगा. अभी credit side income से देख लो. हाँ. By Go on. subscription 1,70,000, by Yes. entrance fee 4,000, by contribution for dinner 36,000, total 36,000. 2,10,000. Contribution for dinner, this is an income because club में जो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, एग्जाम्पल ओल्ड एज होम में कोई एक डोनर बोलते हैं आज मैं शाम को खिला दूंगा सब लोग का, ये इनकम होते हैं. वो लोग पैसा दे देते हैं, हम खिलाते हैं. अंडरस्टूड? दिस इज एन इनकम टू द चैरिटी. यस. हाँ, these are all incomes and expenses. You can see surplus is 30,000. Yes or no? What was the surplus? 30,000. 30,000. Indirectly, income is more than expenditure. That's why we ended up in surplus. Next. The aforesaid income and expenditure account has been prepared after the following adjustments. After the following adjustments. After, in the sense, these adjustments have been considered in the above income and expenditure. Not before, after. Yes or no? Next. Yes. Subscription outstanding as on 31st March 2021, 16,000. Subscription outstanding as on 31st March 2022, 18,000. Subscription received in advance as on 31st March 2021, 13,000. Subscription received in advance as on 31st March 2022, 8,400. Yeah. Stop. Salaries. Wait. Till here, 1, 2, 3, 4. 4 parts is relating to subscription. ऐसा एक फ्लावर ब्रैकेट दे दो, बगल में 1 मार्क करो. जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स है, दिस इज रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शंस. ओके, ऐसे बगल में फ्लावर ब्रैकेट दे दो, 1 मार्क करो. ये 1 दोबारा कहाँ मार्क करेगा? इनकम अकाउंट में देखो,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड देखो, सब्सक्रिप्शन के बगल में 1 दे दो. समझ गया? समझ गए सर? क्यों? नीचे ये 4 आइटम है रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन. ठीक है, हाँ, हम इंडिकेट कर रहा है. नेक्स्ट, नेक्स्ट शिबानी, गो ऑन. Salaries outstanding as on 31st March 2021, 6,000. ओके, Salaries outstanding as on 31st March 2022, 8,000. 8,000. These two give another flower bracket for salaries. This is subscription, okay? Now salaries, give second flower bracket, name it as 2, and salaries in the debit side, first item salaries, mark it as 2. Next, Audit fees for 2020-21 paid during 21-22, 2,000. Audit fee for 21-22 not paid, 2,500. these 3 is audit fees related, huh? This 2 is audit fee related. Give our flower bracket 3. Give in the debit side audit fees 2,500 ना, वहाँ पे number 3 दे दो. Next, The building owned by the association since 2004 cost 1,90,000. हाँ, this is building. It goes to balance sheet, हाँ, asset ना. बाकी Yes. सब items अभी जो देखा है expenses है, incomes है. अभी ये है asset है. ठीक है, next. Equipment as on 31st March 2021 valued at 52,000. This is also an asset. Next. At the end of the year, after depreciation of 7,000, equipment amounted to 63,000. Okay. Equipment as on 31st March 2021. This is opening equipment balance. Yes. Yes or no? Yes. Because current year is 31st March 2022. Yes or no? Yes. Balance, equipment balance as on 31st March 2021. It signifies it is an opening balance of equipment. It is 52,000. At the end of the year, after depreciation of 7,000, equipment amounted to 63,000. सर ओपनिंग 52,000 है, क्लोजिंग डिप्रिसिएशन के बाद 63 कैसे बन जाएगा? ड्यूरिंग द ईयर कुछ खरीद लिया है. Yes. यस और नो? Yes. सॉरी, Yes. हाँ, मेंटेनेंस, कैपिटल मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होने से तब ऐड होगा. नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने से पीएनएल में जाएगा, लेकिन कैपिटल मेंटेनेंस होना चाहिए. मतलब major modifications to the asset which can be capitalized or purchase of an equipment. Only in both these cases asset balance will increase. Yes or no? Ha. Next. In 2020-21, the association raised a bank loan of which is still not paid, 30,000. 30,000. This is a loan taken by the club or association. This is liability. It goes to balance sheet liability side. Clear? Yeah. Next. Cash in hand as on 31st March 2022, 28,500. Cash in hand. Closing cash balance दिया है. ठीक है? Next. Cash in hand as on 31st March 2021, 13,600. Yes, this is opening cash balance. Yes or no? Yes. Next. Capital fund as on 31st March 2021, 2,20,600. Sir, what is this capital fund? Similar to capital. In case of a non-profit organization, you call it as capital fund. Okay. Yes. In case of a commercial organization, you call it as capital. That's the only difference. Huh? So this is capital. It goes to balance sheet liability side. Clear? Now what they are asking us to prepare? Prepare receipt and payment account of the association for the year ended 31st March 2022 and balance sheet on that date. आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दिया है. हमको क्या फाइंड आउट करना है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स, बैलेंस शीट. Receipts and payments is nothing but cash account.
Similar to cash account, you start with opening cash balance, end with opening cash balance, debit all the cash receipts, credit all the cash payments. That's it. Understood? This is receipts and payments account. Balance sheet, fixed assets, current liabilities, long-term liabilities. Balance sheet. Yes or no? Now see here, they have given you the amount in the income and expenditure account. See here once again. They have given you the amount in income and expenditure account. Now you need to find receipts and payments account में amount क्या होगा, find out करना है. इसलिए मैंने बोला reverse treatment. Yes or no? Yes or no? Example यही था. अभी हम receipts and payments account में subscriptions कितना लेना है, इसी प्रोसेस में करना है. सैलरीज कितना लेना है, इसी प्रोसेस में करना है. ऑडिट फीस कितना लेना है, इसी प्रोसेस में करना है. समझ गए? हाँ. अभी पहले 3 वर्किंग नोट होगा, जो मेजॉरिटी आइटम्स है. सब्सक्रिप्शन एक है, यस और नो. सैलरीज एक है, ऑडिट फीस एक है, यस और नो. आई एम स्टार्टिंग विद वर्किंग नोट फर्स्ट. I am starting with working note 1, which is subscription. Heading क्या होगा, calculation of subscriptions received during the year. Received during the year. ईयर क्या होगा, 20, 21, 22. समझ गया? अभी अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और यू कैन टेक इट एज सब्सक्रिप्शंस accrued. You can also take it as subscriptions accrued, because income and expenditure account में दिख रहा है, मतलब this is indirectly subscriptions earned or accrued. Understanding? Okay? Amount as per income and expenditure account कितना था? 1,70,000. 1,70,000. ऊपर लिख दो अमाउंट रुपीस. ये सब भी इंपॉर्टेंट है. हाँ, फॉर पर्टिकुलर्स लिखना है इधर. ठीक है, फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अमाउंट रुपीस ये सब के लिए भी हाफ मार्क होगा एग्जाम में, स्टेप वाइज मार्किंग में. ठीक है. अभी ये तो पॉइंट नंबर 1 हमने दिया था क्वेश्चन में, ऐसा नो. अभी एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 1 में 4 आइटम में देखो. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021. दिस इज ओपनिंग रिसीवेबल. ऐसा नो. दिस इज ओपनिंग रिसीवेबल. नॉर्मली इसको क्या होते करते हैं, रिड्यूस करते हैं. ओपनिंग रिसीवेबल, दिस इज इनकम रिलेटिंग टू लास्ट ईयर, नॉट करंट ईयर. यस और नो. नॉर्मली रिड्यूस करते हैं. कहाँ से? रिसीव्ड अमाउंट से. लेकिन ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट है, इसको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. प्लस कितना है, 16,000. अंडरस्टूड? आप लिख लीजिए इधर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च. मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए. ठीक है. नेक्स्ट आइटम क्या था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 22. दिस इज क्लोजिंग रिसीवेबल. यस और नो. दिस इज द इनकम ऑफ द करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड इन द करंट ईयर. Yes or no? Receivable in the current year, but till the year end it has not been received. Closing receivable. Closing receivable normally received amount को add होगा. इस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, लेस करो. लेस कितना था? 18,000.
Any doubt? You have any doubt? No. Any doubt? You can ask, no issue. If you are stuck somewhere, I'll clarify once again. Don't worry. Understood ना? नॉर्मली अगर रिसीव्ड अमाउंट होने से उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग रिसीवेबल है, मतलब 31 मार्च 2022 में रिसीवेबल है. रिसीवेबल मतलब क्या था, करंट ईयर का इनकम है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, रिसीवेबल इसलिए बोल रहा है. तो करंट ईयर का इनकम होने से रिसीव्ड अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट है, लेस करो. अंडरस्टूड? हाँ. नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2021. ये तो ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस लिखा था. लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस मतलब है ये रिलेटिंग टू करंट ईयर. यस और नो? रिलेटिंग टू करंट ईयर रिसीव्ड अमाउंट को ऐड होगा, लेकिन ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेस करो. कितना है अमाउंट? 13,000 ना? 13,000. हाँ. क्लियर टिल नाउ? नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2022. दिस इज क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस. यस और नो? करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब दिस इज रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर. यस और नो? दिस इज रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर का नहीं है, क्योंकि करंट रिसीव्ड इन एडवांस बोल रहे हैं, मतलब दिस इज रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर. तो इस ईयर में जो रिसीव हुआ उधर से लेस करना पड़ेगा, लेकिन ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट है, ऐड करना पड़ेगा. अंडरस्टूड ना? ऐड करो कितना? 8,400. 8,400. अभी देखो, अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है बोलो? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 कितना है बोलो? अमाउंट देख के बोलो. 1,63,400. 1,63,400. अंडरस्टूड? अभी 1,63,400 को इसका रिवर्स इम्पैक्ट दे दो, आप लोग को ये अमाउंट आ जाएगा, है कि नहीं? अंडरस्टूड ना? If anyone has any doubt, just ask me, I'll clarify once again. Similarly, find out the amount for working note number 2. Calculation of salaries paid during financial year 21-22. Amount rupees, particulars, अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना है बोलो? सैलरीज 1,20,000. इसमें कितना एडजस्टमेंट है? 2. सैलरीज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021. दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग. यस और नो? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जनरली हम करंट ईयर पेमेंट से रिड्यूस करते हैं. क्यों? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज नथिंग बट एक्सपेंस रिलेटिंग टू लास्ट ईयर. यस और नो? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज नथिंग बट एक्सपेंस रिलेटिंग टू लास्ट ईयर. सो करंट ईयर उसमें पेमेंट हो गया होगा. लास्ट ईयर का जो पेमेंट है प्राइमा फेसी करंट ईयर
पहले लास्ट ईयर का पेमेंट करते हैं तभी करंट ईयर का पेमेंट करते हैं आइडियली, ऐसा ना। तो इसलिए जो करंट ईयर पेमेंट किया है उसको जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है रिड्यूस करता है, लेकिन ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट दिया था इसलिए इसको ऐड करेगा। अंडरस्टैंडिंग? 6000 ऐड करो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आइडियली पेड अमाउंट से रिड्यूस करेगा, लेकिन ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो बैलेंस है वो दिया है तो इसको ऐड करेगा। हाँ, करंट ईयर में पे किया है। एग्जाम्पल 1,26,000 ले लो, ये पेड अमाउंट ना, वो ऐड करने के बाद, ये ऐड करने के बाद जो आएगा वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रहेगा, यस और नो। तो ये अमाउंट है एक्चुअली पेड, यस और नो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 बोला है, यस और नो। तो पहले ये 1,26,000 जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, पहले लास्ट ईयर का 6,000 पे करेगा, नेक्स्ट करंट ईयर का 1,20,000 पे करेगा, यस और नो। दिस इज रिलेटिंग टू लास्ट ईयर, दिस इज रिलेटिंग टू करंट ईयर। सो ये 1,20,000 ही P&L में जाएगा, आई मीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। अंडरस्टूड ना? इस केस में रिड्यूस करना है, लेकिन इस केस में ऐड करना। अंडरस्टूड? रीजन बीइंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को पहले पेमेंट करते हैं करंट ईयर में, है कि नहीं? बट दैट एक्सपेंस इज नॉट रिलेटिंग टू करंट ईयर, इट इज रिलेटिंग टू लास्ट ईयर। करंट ईयर एक्सपेंस ही P&L में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है। अंडरस्टूड ना? नेक्स्ट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022, ये तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब है दिस इज रिलेटिंग टू करंट ईयर बट नॉट येट पेड। इसको ऐड करना है आइडियली पेड अमाउंट को, बट इस केस में रिड्यूस करेगा क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अमाउंट है। लेस कितना था? 8,000। 8,000। बोलो नेट अमाउंट कितना है? 1,00,000? 18,000। 18,000, वेरी गुड। This is nothing but salaries paid during the year. Salaries paid during financial year 21-22. ये अमाउंट रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जाएगा, पेमेंट साइड। ये अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, समझ गया? ये अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये अमाउंट रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जाएगा। ये अमाउंट लेके इसको रिवर्स इंपैक्ट दे दो, ये अमाउंट आ जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ। नाउ थर्ड वर्किंग नोटिस, ऑडिट फीस पेड ड्यूरिंग द ईयर। ऑडिट फीस पेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22. Particulars amount rupees, amount as per income and expenditure account. Tell me the amount. Huh? 2,500. 2,500, yes. ऑडिट फीस नंबर 3 है, कितना आइटम में? 2। ऑडिट फीस फॉर 2021 पेड ड्यूरिंग 21-22। ये एक्चुअली कब का है? 2021 का है। 2021 इज नथिंग बट प्रीवियस ईयर। ये एक्सपेंस है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर पे किया होगा तो इसलिए पेमेंट से लेस करता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना, ऐड करो। कितना अमाउंट है? 2,000 ऐड करो। अंडरस्टूड? दिस एक्सपेंस इज रिलेटिंग टू लास्ट ईयर। नहीं दिया है। लास्ट ईयर अगर दे दिया तो इसमें नहीं आएगा ना,
आउटस्टैंडिंग कैसे बोलेगा? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर में पेमेंट किया है, यस और नो? अगर लास्ट ईयर का एक्सपेंस है, लास्ट ईयर ही पेमेंट किया है, आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग बोला है तो लास्ट ईयर का एक्सपेंस है, पेमेंट नहीं किया, incurred during the last year but not paid in the last year। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब है करंट ईयर जो पेमेंट किया पहला लास्ट ईयर का पेमेंट करता है, तब बाद में करंट ईयर का पेमेंट करता है। समझ गए कॉन्सेप्ट? तो तनुज, एनी डाउट? डाउट है कि कुछ नहीं? नेक्स्ट, ऑडिट फीस फॉर 21-22 नॉट पेड, दिस इज रिलेटिंग टू करंट ईयर, यस और नो? बट नॉट पेड मतलब जो पेमेंट किया उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा ड्यूरिंग द ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है तो उसको भी ऐड करना है, क्योंकि ये तो करंट ईयर के एक्सपेंस है, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस ना माइनस करना है। माइनस कितना था? 2500। 2500। इधर लिखो, ऑडिट फीस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना था? ऑडिट फीस पेड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनेंशियल ईयर 21-22 कितना है? डाउट? हाँ, ये नॉक ऑफ हो जाएगा तो 2000 होगा, ठीक है? अभी सब हो गया, ठीक है? वर्किंग नोट सब हो गया। अभी अच्छा से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट डाल दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, सॉरी, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पहले लिखना है इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो एसोसिएशन। इसमें एसोसिएशन नहीं था, नाम नहीं दिया, इसलिए ब्लैंक रख के एसोसिएशन नाम लिख दो। नाम एसोसिएशन नहीं था, ऐसा ब्लैंक ब्लैंक लिख के एसोसिएशन लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ। अगर कुछ नाम देगा तब नाम लिखना पड़ेगा। तब बाद में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कितना है? 31 मार्च 2022। ये तो कैश अकाउंट सिमिलर है, इसलिए डेबिट साइड हमेशा रिसीट्स होता है, क्रेडिट साइड हमेशा पेमेंट्स होता है, बिकॉज दिस इज ए कार्बन कॉपी ऑफ कैश अकाउंट, दिस इज अ क्रेडिट पार्ट। अंडरस्टूड? हम पहले क्या करेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो? ओपनिंग कैश बैलेंस यस 13,600 इज द ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना है? 28,500, ठीक है? ओपनिंग क्लोजिंग मैंने लिख दिया। तुरंत वर्किंग नोट्स में तीन आइटम्स है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीट साइड लिख देना तुरंत, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज फर्स्ट वर्किंग नोट, कितना था? 163,400, 163,400, क्लियर? तुरंत वर्किंग नोट नंबर 2 में जाओ, सैलरीज पेड, बाय सैलरीज पेड कितना था? 1,18,000। 1,18,000, क्लियर? थर्ड वर्किंग नोट क्या था? ऑडिट फीस, बाय ऑडिट फीस पेड। दिस टू आर पेमेंट्स, वन इनकम टू पेमेंट्स है, इसलिए इधर ले रहा हूं। ऑडिट फीस पेड कितना था? 2,000 ना? यस। हाँ, अभी वर्किंग नोट सब ले लिया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ले लिया।
बैलेंस क्या आइटम्स बचा था एक बार देख लो. फर्स्ट डेबिट साइड देखो एक्सपेंसेस में, ठीक है. 2 सैलरीज हमने कंसिडर कर दिया. नेक्स्ट आइटम क्या था? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6000. सर 6000 पेमेंट किया है कि नहीं पता नहीं ना. अगर पेमेंट नहीं किया तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बैलेंस मिल जाएगा आपको नीचे. समझ गए? अगर पेमेंट नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग बोल के आपको क्वेश्चन में देगा. नहीं दिया मतलब जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में है सब पेमेंट हो गया. ऐसा ना. अभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में देखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? कितना कितना? 6,000. 6000. वेरी गुड. नेक्स्ट टेलीफोन. बाय टेलीफोन 1500. सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं था इसलिए मैं पेमेंट में ले रहा हूं. समझ गया? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं है मतलब पेमेंट हो गया इसलिए पेमेंट्स में ले रहा हूं. पोस्टेज कितना है? 500. 500. जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 12,000. इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 5,500. ये किसी का आउटस्टैंडिंग नहीं है इसलिए सीधा पेड था. ऑडिट फीस हम ऑलरेडी ले लिया है कि नहीं. डिनर एक्सपेंसेस डेबिट साइड आपने ऑब्जर्व किया होगा डिनर एक्सपेंसेस. क्रेडिट साइड देखा होगा डिनर कंट्रीब्यूशन है कि नहीं. 36,000 आया तो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 25,000. सर बाकी क्या प्रॉफिट है क्या? नहीं. बाकी जो अमाउंट बचा है वो दूसरा चैरिटी के लिए यूज करेगा. समझ गए? चैरिटी में जो पैसा आएगा वो उसमें बचाने का इंटेंशन नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली कितना एक्सपेंस होगा डिनर के लिए कोई एस्टिमेट नहीं कर सकते ना. स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूशन मिल गया 36,000 लेकिन एक्सपेंस हुआ एग्जैक्टली 25,000. सर बाकी इनकम है क्या? नो. दैट जो अमाउंट बचेगा दूसरा दिन डिनर के लिए खर्चा करेगा. अंडरस्टूड? डिनर एक्सपेंसेस क्या था? 25,000. डिप्रिसिएशन 7,000 है. सर ये लेना है क्या पेमेंट्स में? हाँ लेना है क्या पेमेंट्स में? No, sir. वाई? Only cash transactions are recorded in receipts and payments. Very good Shibani. Give her a big round of applause. Depreciation is a non-cash expenditure. पेमेंट नहीं होते हैं. डिप्रिसिएशन के नाम पे थोड़ा अमाउंट साइड में रख देता है फॉर फ्यूचर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट. डिप्रिसिएशन पेमेंट नहीं है वो. एग्जाम्पल क्या था? ये जो चेयर है इसके ऊपर मैं डिप्रिशिएट कर रहा हूँ. इतने 10,000 में ले लिया मैंने. मैं सोचूंगा इसको 5 साल में इसका एक्सपायरी हो जाएगा मतलब इसका काम हो जाएगा तो मतलब मैं क्या कहूँ 2000 डिप्रिशिएट करूंगा. इसका मतलब मैं 2000 किसी को पेमेंट नहीं करूंगा बगल में रख दूंगा अमाउंट इनडायरेक्टली. दैट इज डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर. दैट्स वाई डिप्रिसिएशन नहीं आएगा पेमेंट्स में. ठीक है. नेक्स्ट इनकम सब्सक्रिप्शन हम ले लिया. टू एंट्रेंस फीस कितना है? 4,000. टू कंट्रीब्यूशन फॉर डिनर 36,000. ठीक है. अभी रिसीट्स एंड पेमेंट्स एग्जैक्टली टैली हो गया कि नहीं देखो. और कुछ बैलेंस बचा है देखो. बैलेंस बचेगा क्योंकि और आइटम्स है है कि नहीं. सब्सक्रिप्शंस नंबर 1 हो गया. सैलरीज नंबर 2 हो गया. ऑडिट फीस नंबर 3 हो गया. बिल्डिंग ओन्ड बाय द एसोसिएशन सिंस 2004 ये कहा जाएगा बैलेंस शीट है कि नहीं. बैलेंस शीट फर्स्ट लाइबिलिटीज है एसेट्स है कि नहीं. एसेट्स में बिल्डिंग्स का अमाउंट देखो 1,90,000. बिल्डिंग्स 1,90,000.
नेक्स्ट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मैं एक लेजर अकाउंट ड्राफ्ट कर रहा हूं. इक्विपमेंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस, this is debit side, this is credit side. Equipment is an asset, so it will always have debit balance. Debit opening balance is denoted via to balance brought down. Yes or no? Opening balance कितना था? Opening balance कितना है equipment का? 52,000. At the end of the year after depreciation of 7,000. तो depreciation कैसे होगा? depreciation का एंट्री क्या होगा? depreciation account debit to equipment account. Yes or no? depreciation account is an expense, that's why income and expenditure account में चले गया. equipment का corresponding amount reduce करना है तो by depreciation. इक्विपमेंट अकाउंट में पोस्टिंग करो बाय डिप्रिसिएशन 7,000. अंडरस्टैंडिंग? क्लोजिंग बैलेंस दिया था, क्लोजिंग कितना है बोलो? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? 63,000. सर बैलेंसिंग फिगर देखो किस तरफ आ रहा है. बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रहा है. कितना है बैलेंसिंग फिगर बोलो मुझे? 18,000. 70,000 है. 70,000 है कि नहीं? 70 माइनस 52 कितना होगा? 18,000 होगा, है कि नहीं? दिस 18,000 इज नथिंग बट टू कैश और बैंक. यस और नो? टू कैश और बैंक. सर कैसे पता है? एंट्री, इसका एंट्री फॉर्म करो. इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. ओपनिंग 52,000 है, डिप्रिसिएशन 7,000 निकालने से 52 माइनस 7,000 कितना है? 45. 45,000 होना चाहिए, 63,000 कैसे हो गया? बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर कुछ इक्विपमेंट खरीद लिया. अंडरस्टूड? इसलिए बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आया था. अंडरस्टूड? सर 52,000 है, डिप्रिसिएशन 7,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है. सर क्या हो सकता है? सेल किया ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट. अंडरस्टैंडिंग? ड्यूरिंग द ईयर सेल किया तभी कम हो जाएगा. ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया तब बढ़ जाएगा. परचेज किया है तो कैश आउटफ्लो है, सेल किया है तो कैश इनफ्लो है. ये जो अमाउंट है इसको एंट्री, इधर बैलेंसिंग फिगर आया था ना, तो एंट्री हमेशा होगा इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू समथिंग. तो इधर आया था मतलब ये परचेज है तो टू कैश एंड बैंक. सर मेरा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, मेरा इक्विपमेंट बैलेंस बढ़ जाएगा. अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग? हाँ. अभी कैश पेमेंट किया इनडायरेक्टली, ये कैश क्या था? आउटफ्लो है. इक्विपमेंट परचेज्ड इज नथिंग बट आउटफ्लो. यस और नो? ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स में पेमेंट साइड देख लेना. 18,000. ठीक है? 18,000 इक्विपमेंट परचेज्ड. एनी डाउट्स टू एनीवन? बाय इक्विपमेंट ब्रैकेट में परचेज लिखो. वर्किंग नोट नंबर 4 है वो. ठीक है? ये जो इक्विपमेंट अकाउंट है ये वर्किंग नोट नंबर 4 होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 वर्किंग नोट लिख दिया ना, ये 4 होगा. सर इस इक्विपमेंट अकाउंट ड्राफ्ट करने से आपको क्या मिल गया? कैश पेमेंट कितना हुआ है वो मिल गया. ठीक है ना? 18,000 है. ठीक है? और कुछ बचा है क्या? लोन, बैंक लोन. बैंक लोन कितना था? लोन है, लोन लाइबिलिटी साइड आएगा. लोन कितना है?
30,000 30,000. 30,000 सर इधर एसेट नहीं लिखा है, इक्विपमेंट का बैलेंस इधर लिखो। इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 63,000। 3,000. लोन है ये। अभी कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना देखो, कैश इन हैंड का, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस देखो इधर 28,500। 28,500 ये बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा ना। ठीक है। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना दिया? 220,600। ऐड सरप्लस, सर सरप्लस कहाँ से मिला? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो सरप्लस कितना है? 30,000। तो ऐड करने से कितना आया था? 2,50,600। क्लियर। अभी इधर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग्स, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग्स बैलेंस शीट में हमने दिया नहीं, वो वाला देना पड़ेगा। इसके पहले इधर तो कुछ आइटम्स नहीं है, इधर टैली कर लो, ये मैच हो रहा है कि नहीं देख लो, कुछ बैलेंस आ रहा है कि नहीं बताओ। क्रेडिट साइड कितना है बताओ? 13,600। आया था ना एग्जैक्टली? हाँ 2,17,000 इधर एग्जैक्टली 2,17,000 आना चाहिए। एक्सपेंसेस में देखो आया था कि 1,18,000, 2,000, 1,20,000, 1,26,000, 1,28,000, 1,28,000, 1,38,000, 1,40,000, 1,45,500, 1,50,500, 1,70,500, 1,70,500 प्लस 18,000 लिखो। $1,70,500 प्लस 18,000 प्लस 28,500 एग्जैक्टली 2,17,000 है। ठीक है, एग्जैक्टली बैलेंस हो गया। ठीक है, अभी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग आइटम्स हमने दिया नहीं था, एक बार क्वेश्चन में आ जाओ। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कुछ है क्या देख लो, वो वाला एसेट या लाइबिलिटी है उसमें डाल दो। पहले सब्सक्रिप्शंस में जाओ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम कंसिडर नहीं करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, ये तो एसेट होगा 18,000 है कि नहीं? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, दिस इज क्लोजिंग 18,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग हमको जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर करो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लाइबिलिटी, कितना था? 8,400 इधर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, एक्चुअली वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3 करने के समय ही तुरंत बैलेंस शीट में पोस्टिंग देना है। ठीक है, उसी टाइम पे देने से फ्री होगा। अभी सैलरीज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हमको मतलब नहीं है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? 8,000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग इज नथिंग बट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना था? 8,000। सिमिलरली ऑडिट फीस, दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है जो 2,000 है। अभी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना था देखो, 21, 22 नॉट पेड, दिस इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यस और नो? दिस इज 2,500 आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 2,500। अभी बैलेंस शीट को टैली करो, टैली हो रहा है कि नहीं देखो।
बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं देखो. कितना आया था एसेट साइड टोटल कितना है 2 299,500 एसेट साइड लाइबिलिटी साइड एसेट साइड 299,500 एग्जैक्टली टैली हुआ है ना. दिस इज द सम. अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में ले लीजिए. सेम मॉडल है आप ले सकते हैं. ठीक है. थैंक यू. राकेश सर, मेनी डाउट्स? No, sir. हाँ.